हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री एकेडमी। जेई मेन सेलेक्टिव प्रॉब्लम सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए 25 क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स के लेके आए हैं। तो बिना किसी समय गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की प्रॉब्लम्स। तो लेट अस डिस्कस द फर्स्ट प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम को हम डिस्कस करते हैं। The enthalpy change on freezing of 1 mole of water at 5 degrees Celsius to ice at minus 5 degrees Celsius is given delta H fusion is equal to 6 kilojoule per mole at 0 degrees Celsius and Cp of H2O in liquid state is 75.3 joule per Kelvin per mole. Cp of H2O in solid state is 36.8 joule per Kelvin per mole. So this is a question based on enthalpy is a state variable. तो इसमें हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमारे पास जो H2O है इनिशियली, इफ वी सी H2O is present in liquid state, right? Because its temperature is 5 degrees Celsius, so water at 5 degrees Celsius will be in liquid state. From this liquid state we have to move in solid state at minus 5 degrees Celsius. So final state will be H2O in solid state at minus 5 degrees Celsius. We have to calculate what is the enthalpy change in this process. Since enthalpy is a state variable, तो ये पहला पाथ हो गया। दूसरा पाथ हम इस तरह से कुछ ले सकते हैं। We can move from H2O in liquid state at 5 degrees Celsius to H2O in liquid state at 0 डिग्री सेल्सियस। तो हम इस वाटर को कूल कर रहे हैं 5 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर विल कन्वर्ट इनटू आइस at its freezing point, so H2O in solid state at 0 degree Celsius, and then we can cool this ice from 0 degree Celsius to minus 5 degree Celsius. तो इस पूरे प्रोसेस में जो इंथैल्पी चेंज होगा, we can write that is equal to delta H1 plus delta H2 plus delta H3. So enthalpy is the state variable. We can say that delta H in the first path is equal to the summation of delta H1 plus delta H2 plus delta H3. अगर हम यहाँ देखें delta H1 क्या है? This is cooling of water at from 5 degrees Celsius to 0 degrees Celsius. So we know that this is taking place when pressure is constant. So if I have to write what is dH1, I should write that dH1 is equal to NCP dt, right? So number of moles we have to take it, we have to take 1 mole of water. So Cp of water in liquid state into dt. और हम ये कह सकते हैं कि जो डेल्टा H1 की वैल्यू है, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर देते हैं तो Cp is constant. So Cp of liquid into delta T. Cp of liquid water is given, that is 75.3. So 75.3 into delta T. कूलिंग हो रही है तो टेम्परेचर चेंज जो है वो नेगेटिव होगा, दैट इज इक्वल टू -5। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इफ वी मल्टीप्लाई दिस इज नेगेटिव, दिस विल बी 15, 25 plus 1 will be 26, 35 plus 2 will be 37. So 376.5 joule per mole, right? So this is the delta H per mole। एक मोल के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं। डेल्टा H1 की वैल्यू आ गई। डेल्टा H2 की बात करें तो ये जो है वो फ्रीजिंग ऑफ वाटर है, फ्यूजन इज मेल्टिंग। सो इसकी डेल्टा H2 की वैल्यू की बात करें तो ये -6 किलो जूल पर मोल होना चाहिए। दिस इज -6 किलो जूल पर मोल। नाउ डेल्टा H3, we should start with writing DH3 and that is equal to freezing cooling of ice. So that can be written as NCP dt. N is equal to 1, so Cp of solid into dt. अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं तो हम लिख सकते हैं डेल्टा H3 की जो वैल्यू होगी Cp ऑफ सॉलिड के लिए Cp की वैल्यू दे रखी है 36.8 इंटू टेम्परेचर चेंज इज नेगेटिव, दैट इज -5। इसको भी अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं, विल गेट द वैल्यू ऑफ डेल्टा H3। तो डेल्टा H3 की वैल्यू यहां से देखें, दिस विल बी 40, 30 plus 4 is 34 and 15 plus 3 will be 18. So this is -184
जूल पर मोल, राइट। तो इन दोनों को अगर हम ऐड कर देते हैं, बिकॉज वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा एच, सो डेल्टा एच विल बी डेल्टा एच1, डेल्टा एच1 और डेल्टा एच3 को अगर हम ऐड करते हैं, सो 376.5 and 184, so this value will be 560.5 जूल, राइट। इसको अगर हम किलो जूल में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 0.56। सो इफ वी राइट व्हाट इज डेल्टा एच, डेल्टा एच को हम लिख सकते हैं -6 और ये -0.56, बिकॉज वी हैव टू राइट द आंसर इन किलो जूल। सो डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H3 की वैल्यू जो है वो -0.56 होगा, so this value is equal to -6.56 किलो जूल पर मोल। दिस इज द वैल्यू। तो इस हिसाब से जो आंसर हमारा होना चाहिए, दैट शुड बी द फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही है। दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन एंथैल्पी इज अ स्टेट वेरिएबल। तो अगर इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम है, या तो हम इस रास्ते से जाएं या इस वाले रास्ते से जाएं, द चेंज इन द वैल्यू ऑफ एंथैल्पी इज नॉट going to change. So moving to the next problem discuss करते हैं। The enthalpy change on freezing of 1 mole of water. Okay, so this is the same question. A gas undergoes change from state A to state B. In this process, the heat absorbed and work done by the gas is 5 joule and 8 joule respectively. Now gas is brought back to A by another process during which 3 joule of heat is evolved. In this reverse process B to A, which option is correct? So we have to see this question that internal energy जो है वो state variable है, heat energy and work energy they are path variable. So we are moving from state A to state B. A से B मूव कर रहे हैं। A से B के लिए इन्होंने मेंशन कर रखा है a gas undergoes a change from state A to B. This process, the heat energy absorbed and work done is there. So heat energy absorbed in process A to B is equal to 5 joule, and the work done by the gas, so work done in process A to B will be negative, and that is equal to -8 joule. साइन का ध्यान रखना है, यहाँ heat energy absorbed है, so QAB will be positive. Work is done by the system, so work AB will be negative. First law of thermodynamics लगाते हैं, delta U in process A to B is equal to Q in process A to B plus work done in process A to B. तो यहाँ अगर हम वैल्यू रखते हैं, so we can get here that the change in internal energy of the gas when it is moving from A to B is equal to -3 joule. Now हमें वापस जो है वो B से A पोजीशन पे आना है, राइट। तो हमें पता है इंटरनल एनर्जी स्टेट वेरिएबल है। इफ आई एम मूविंग फ्रॉम ए टू बी, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन दिस प्रोसेस इज -3। तो पाथ कुछ भी हो, अगर मैं बी से ए मूव करूंगा तो आई कैन राइट दैट द चेंज इन इंटरनल एनर्जी व्हेन वी मूव फ्रॉम बी टू ए इज इक्वल टू +3 जूल। ठीक है, ए से बी के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज -3 है, तो बी से ए के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज जो होगा वो +3 joule होगा। And they are saying that now the gas brought back to A by another process during which the 3 joule of heat is evolved. So in this process B to A, heat energy is rejected by the system, heat energy is evolved from the system, so Q in B to A will be -3. First law of thermodynamics use करते हैं, delta U in process B to A is equal to Q in process B to A plus work done in process B to A. तो अगर हमें इसमें अगर वैल्यू पुट करते हैं तो ये वैल्यू 3 होगी, दिस वैल्यू इज -3। फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट दैट व्हाट इज द वर्क डन। वर्क डन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आ रही है, इसका मतलब हो गया कि वर्क इज डन on the surrounding by the surrounding on the gas. So 6 joule of work will be done by the gas. ये तो गलत हो गया, राइट। 6 joule of work will be done by the surrounding on the gas. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वर्क डन की जो वैल्यू आ रही है, यू कैन चेक दैट द वैल्यू ऑफ वर्क डन इज पॉजिटिव, इट मींस दैट वर्क इज डन
by the surrounding on the gas. So 6 joule of work done will be done by the surrounding on the gas. Second should be the answer. So the question is based on the simple concept of change in internal energy. Since internal energy is a state variable, right? So if I am moving from A to B, when I will come back from B to A, then the internal energy change will be minus times of its initial value. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Moving to the next problem. A piston filled with 0.04 mole of an ideal gas expand reversibly from 50 ml to 375 ml at a constant temperature of 37 degrees Celsius. As it does so, it's absorbed 208 joule of heat. The value of Q and W for the process will be. तो साइन कन्वेंशन यूज करें. ये प्रोसेस कैसा हो गया? दिस प्रोसेस विल बी आइसोथर्मल because the temperature is constant and the process is reversible, right? So isothermal reversible expansion हो रहा है गैस का, right? And the gas is ideal in this process. The change in internal energy is equal to 0 because ideal gas participating in any process is NCV delta T. Temperature change is 0, so delta U is equal to 0. First law of thermodynamics लगाए, Q is equal to minus times of W. यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि इन दिस प्रोसेस हीट इज एब्सॉर्ब एंड द हीट एब्सॉर्ब इज इक्वल टू 208. तो साइन कन्वेंशन यूज करें तो Q की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव होगी एंड वी नो दैट डेल्टा U इज इक्वल टू 0. सो वी कैन राइट बाय यूजिंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट Q plus W is equal to 0. From here we can write that W is equal to minus times of Q, that is equal to minus 208 joule, right? कुछ बच्चों की अप्रोच ऐसी भी हो सकती है कि आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस में आइडियल गैस का जो वर्क डन है दैट इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 upon V1. From here also they will get the same answer. So 1 mole of gas is there, right? And we have to use R as 8.314 and the temperature of the gas at which this is happening is 310 Kelvin. ln V final की वैल्यू जो है वो 375 है और V इनिशियल की वैल्यू है 50. इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं. अगर हम 375 को 50 से डिवाइड करते हैं तो ये 15/2 आएगा, दैट इज इक्वल टू 7.5. तो ये वैल्यू पुट करके भी अगर आप सॉल्व करोगे तो यहां से जो वर्क डन की वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू माइनस 208 जूल. तो इसके हिसाब से देखें, पहला ऑप्शन सही दिख रहा है. Q की वैल्यू 200 प्लस 208 एंड वर्क डन इज माइनस 208, राइट? तो ये थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा एंड दिस इज द राइट अप्रोच टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. नेक्स्ट प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और रिलेशनशिप्स इज नॉट करेक्ट इन थर्मोडायनेमिक्स चेंजेस. तो थर्मोडायनेमिक्स चेंजेस में इसमें से कौन सी इनकरेक्ट है, नॉट करेक्ट? पहली है Q इज इक्वल टू माइनस nRT ln V2 अपॉन V1 आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस. तो अगर आइडियल गैस सिस्टम है, अगर आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू 0. So Q is equal to minus times of work done. Work done in reversible isothermal expansion or compression of an ideal gas can be written by this formula minus nRT ln V2 upon V1, right? और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि Q है, तो Q in this reversible process is minus times of work done. तो Q की वैल्यू आनी चाहिए minus nRT ln V2 upon V1. इस हिसाब से अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन गलत हो गया. फर्स्ट ऑप्शन इज wrong, right? This is a false option and they are asking which is not correct. तो आंसर तो यही हो गया. बाकी ऑप्शंस को देखते हैं. For a system at constant volume, heat involved merely changes to internal energy. क्योंकि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोपोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, देयर इज नो वर्क डन, सो वर्क डन विल बी 0. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाते हैं, डेल्टा U इज इक्वल टू QV. तो ये जो सेकेंड स्टेटमेंट है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट. The third statement is work is minus nRT ln V2 upon V1 isothermal reversible expansion of ideal gas. This statement is true. Delta U is 0 for an ideal gas participating in isothermal reversible process. Participating in isothermal reversible or irreversible, delta U is NCV delta T. If delta T is 0, then delta U is 0. So this is true. Answer 1 होगा. They are asking about which is incorrect. Moving to the next problem. ये भी बहुत सिंपल प्रॉब्लम है. डेल्टा U is equal to,
हमें पता है आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन विल बी 0, तो डेल्टा U इज इक्वल टू QV. दे आर सेइंग आइसोकोरिक वर्क, दैट इज रॉन्ग. आइसोबैरिक वर्क, दैट इज रॉन्ग, बिकॉज आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर हम वर्क डन लिखते हैं तो वर्क डन इन आइसोबैरिक प्रोसेस इज माइनस टाइम्स ऑफ P डेल्टा V एंड Q इज इक्वल टू NCP डेल्टा T. तो डेल्टा U की वैल्यू अगर हम लिखते हैं तो दैट इज द सम ऑफ Q प्लस W. दे हैव नॉट मेंशन्ड व्हाट इज द सिस्टम, सो दिस इज नॉट गोइंग टू मैच. एडियाबैटिक वर्क, एडियाबैटिक प्रोसेस में Q की वैल्यू 0 होती है, डेल्टा U इज इक्वल टू W, दिस इज मैचिंग. सो इसका जो आंसर होना चाहिए वो 3 होना चाहिए. Isothermal, they have not mentioned that what is the system, right? Isothermal work, तो we can say that depending upon कि ये work reversible है या irreversible है, we can use the formula. For any process, we should start for work done dW is equal to minus times of P external into dV. अब process reversible है या irreversible है उसके हिसाब से proceed करेंगे. यहाँ ये भी mention नहीं है कि ये system क्या है, तो we can't say anything. We can say that du is equal to q plus w. तो यहाँ पे एक सिंपल क्वेश्चन था जिसका आंसर जो है वो 3 है. चलिए आगे मूव करते हैं. मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम. सो एन आइडियल गैस अंडरगोज अ साइक्लिक प्रोसेस एज शोन इन द फिगर. फिगर में ये साइक्लिक प्रोसेस दिखा रखा है, A to B, B to C and C to A. The internal energy change in B to C process and heat energy exchange in A to B process is given. Work done in process A to B is known and work done in C to A process is known. So they are asking that what is the heat energy absorbed in process C to A. C to A process में heat energy कितनी absorb होगी, they are asking about this. तो हमें पता है कि ये साइक्लिक प्रोसेस है. पूरे साइक्लिक प्रोसेस के लिए इफ वी कैलकुलेट व्हाट इज द चेंज इन इंटरनल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू 0. द चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैन बी रिटन एज द इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस A to B, इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस B to C प्लस इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस C to A. सो इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस A to B, अगर हमें A से B प्रोसेस के लिए फर्स्ट लॉ लगाते हैं, इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस A to B इज इक्वल टू Q इन प्रोसेस A to B प्लस वर्क डन इन प्रोसेस A to B. A से B प्रोसेस के लिए Q की वैल्यू दे रखी है, Q इज इक्वल टू 2 and work done in A to B is -5. So from here we can say that -3 kilojoule per mole will be the internal energy change in process A to B. इसी तरह से B से C प्रोसेस के लिए अगर देखो तो इंटरनल एनर्जी का चेंज दे रखा है. सो नाउ आई कैन अप्लाई हियर. सो फ्रॉम देयर आई कैन कैलकुलेट दैट व्हाट इज इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस C to A, दैट इज माइनस टाइम्स ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस A to B माइनस टाइम्स ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस B to C. A से B प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी का चेंज माइनस दिए, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, और B से C प्रोसेस के लिए इंटरनल एनर्जी दे रखी है, दैट इज -5. सो माइनस माइनस विल बिकम प्लस. दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8 किलोजूल पर मोल. दिस इज द इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस C to A. दे आर आस्किंग दैट व्हाट इज द हीट एनर्जी एक्सचेंज. वर्क डन इन C to A इज गिवन. सो फॉर C to A प्रोसेस वी कैन अप्लाई what is first law of thermodynamics. So delta U is equal to Q plus W for C to A process. डेल्टा U की वैल्यू हमने C से A के लिए कैलकुलेट की है, दैट इज इक्वल टू 8, और हमें Q निकालना है कि C से A प्रोसेस का Q क्या होगा. वर्क डन जो है वो C से A प्रोसेस का दे रखा है, दैट इज पॉजिटिव व्हिच इज इक्वल टू 3. सो फ्रॉम हियर वी कैन कैलकुलेट दैट heat energy will be absorbed and that is equal to 5 kilojoule per mole, right? So आंसर इसका जो होना चाहिए वो सेकंड आंसर होना चाहिए. Second must be the answer for this question. Again it is based on internal energy is a state variable. So moving to the next problem. Next problem को solve करते हैं. An ideal gas undergoes isothermal compression from 5 meter cube to 1 meter cube against a constant external pressure of 4 Newton per meter square. तो कंप्रेशन हो रहा है तो वर्क डन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए.
Heat released in this process is used to increase the temperature of 1 mole of aluminium. If the molar heat capacity of aluminium is 24 joule per Kelvin per mole, the temperature of aluminium increased by. तो सबसे पहले तो हम वर्क डन निकाल लेते हैं. वर्क डन पॉजिटिव होगा और वर्क डन का फॉर्मूला, क्योंकि ये irreversible process है, external pressure constant है, we can write that minus times of P external V final minus V initial is equal to work done. तो यहाँ वैल्यू पुट कर देते हैं. वर्क डन पॉजिटिव आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, यहाँ नेगेटिव साइन लगा हुआ है. प्रेशर है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का चेंज मैग्नीट्यूड जो है वो 4 है. तो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दैट 16 न्यूटन मीटर और 16 जूल विल बी द वर्क डन ड्यूरिंग द कंप्रेशन. तो गैस को कंप्रेस करके व्हाटएवर वी आर डूइंग कंप्रेशन मींस वी आर सप्लाइंग एनर्जी टू द गैस एंड दैट एनर्जी इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर. हमें पता है कि आइडियल गैस के लिए आइसोथर्मल प्रोसेस है, बिकॉज अंडरगोइंग आइसोथर्मल कंप्रेशन डेल्टा यू की वैल्यू 0 होगी. सो Q इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ W. सो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी दैट इज इक्वल टू 16 जूल. ये जो 16 जूल हीट एनर्जी है, इससे हम एल्यूमिनियम मेटल को हीट कर रहे हैं. सो द हीट एनर्जी गेन बाय एल्यूमिनियम मेटल इज इक्वल टू 16 जूल. Q इज इक्वल टू N इंटू मोलर हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा T. तो 1 मोल एल्यूमिनियम का है, मोलर हीट कैपेसिटी की वैल्यू जो है वो 24 है. We have to find that what is the increase in temperature. So from here we can write that increase in temperature is 16 by 24 which is equal to 2 by 3 Kelvin, right? So ये temperature rise होना चाहिए, इस हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए that should be 2. So again it's a very simple question. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम के लिए. ये जो प्रॉब्लम है इसका आंसर एनटीए ने गलत दे रखा है, ठीक है. अब मैं इसको डिस्कस करता हूं इस क्वेश्चन को. द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय द गैस अंडर वाज अ रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग द पाथ एबीसी शोन इन द फिगर इज. ठीक है, तो अब इसमें जो पहला पाथ है ए से बी, अगर हमें वर्क डन निकालना है ए से बी प्रोसेस में, यू कैन सी दैट प्रेशर इज कांस्टेंट. तो ये आइसोबैरिक प्रोसेस हो गया. आइसोबैरिक प्रोसेस में वर्क डन निकालना है दैट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज डेल्टा वी. तो प्रेशर की वैल्यू जो है वो 8 पास्कल है. सो आई कैन राइट हियर 8 पास्कल. और वॉल्यूम का चेंज यू कैन सी यहाँ पे वॉल्यूम 2 लीटर है और फाइनली इस जगह पे वॉल्यूम 8 लीटर है. तो जो वॉल्यूम का चेंज है वो 6 लीटर से है, राइट. मीटर क्यूब से, इट इज नॉट लीटर, इट इज मीटर क्यूब, ऐसा यूनिट है. तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये हो गया -48 और वॉल्यूम का चेंज मीटर क्यूब में और ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब यूनिट जो है वो जूल होनी चाहिए. सो दिस इज द वर्क डन इन प्रोसेस ए टू बी. बी से सी प्रोसेस में अगर हमें वर्क डन निकालना है, राइट, इफ वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट इज द वर्क डन इन प्रोसेस बी टू सी, तो बी से सी प्रोसेस का जो वर्क डन होगा, अगर आप इसको इस ग्राफ को अगर आप देखो ध्यान से, तो ये ग्राफ अगर यहाँ इन्होंने ये 2 के रिस्पेक्ट में बनाया है, अगर मैं 0 के रिस्पेक्ट में बी से सी प्रोसेस के लिए ग्राफ ड्रॉ करूं, अगर यहाँ पे मैं प्रेशर को 0 मान रहा हूं और वॉल्यूम को 0 मान रहा हूं, तो यहाँ पे जो वॉल्यूम है बी से सी में आप देखिए, वॉल्यूम में तो कोई चेंज नहीं आएगा. यहाँ वॉल्यूम जो है वो 8 है और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो 12 है. दिस इज द वॉल्यूम. और प्रेशर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रेशर, दिस प्रेशर इज इक्वल टू 8 और ये जो प्रेशर है, दिस प्रेशर इज इक्वल टू 2. ये एक्चुअल ग्राफ है बी से सी के लिए, ठीक है. इन्होंने ओरिजिन को शिफ्ट किया है बट द एक्चुअल ग्राफ इज दिस. यहाँ पे ये ट्रेपीजियम है क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस है बी से सी, तो वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर ग्राफ, और वर्क डन नेगेटिव होगा क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है. So if I write what is the work done, माइनस साइन मैंने लगा दिया because volume is increasing. और ट्रेपीजियम का एरिया क्या होगा, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स की बात करें तो प्रेशर जो है वो 8 है और प्रेशर 2 है और वॉल्यूम का चेंज परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज इक्वल टू 4. तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूं तो दिस इज इक्वल टू 10 यहाँ पे आना चाहिए और ये 2 आना चाहिए. सो फ्रॉम हियर वी आर गेटिंग दैट दिस वैल्यू इज इक्वल टू -20 जूल.
सो टोटल वर्क डन की बात करें इस पूरे प्रोसेस में, टोटल वर्क डन क्या होना चाहिए, वर्क डन इन प्रोसेस A to B प्लस वर्क डन इन प्रोसेस B to C, तो ये -68 जूल होना चाहिए। दे आर आस्किंग अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, सो मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन इज इक्वल टू 68 जूल, राइट, ये होना चाहिए था आंसर, इसका 68 होना चाहिए था, बट एनटीए ने जो आंसर दे रखा है वो 48 दे रखा है। और उन्होंने क्या गलती करी है वो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का ग्राफ है, तो एरिया अंडर ग्राफ इज इक्वल टू द वर्क डन। दे हैव नॉट टेकन दिस पॉइंट कि यहां ओरिजिन शिफ्ट किया गया है, तो उन्होंने सीधे जो वर्क डन निकाला है एरिया अंडर ग्राफ से वर्क टोटल लिखा है, यहाँ पे वॉल्यूम बढ़ रहा है तो ये जो स्क्वायर है इसका एरिया लिया है, सो दे हैव रिटन दैट दिस हाइट विल बी 6 बिकॉज 8 minus 2 एंड दिस लेंथ विल बी 6, राइट। और यहाँ पे इस ट्राइंगल का एरिया लिया है, नेगेटिव साइन में लगा देता हूं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, सो हाइट तो 6 है, बेस की वैल्यू जो है वो 4 है, सो इफ यू सिंप्लीफाई दिस इज -36 एंड दिस इज -12, this is equal to -48, so magnitude of work total की वैल्यू जो है that is equal to 48 which is given by NTA which is totally wrong। ये शायद उस वक्त ऑब्जेक्ट भी किया गया था, पता नहीं एनटीए वाले क्या करते हैं, कई बार तो ऐसा लगता है कि वहां जो लोग बैठे हुए हैं वो सही ढंग से अपना काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह की जो है मिस्टेक उनसे एक्सपेक्ट नहीं की जाती। After objection also, I remember that in 2020 we have objected, but they have not taken any action, right? तो इतनी सिंपल एरर करते हैं ये लोग और अपनी गलती को नहीं मानते हैं। तो in few question every year there are some confusion, some doubt left, we can't do anything, right? So let us move further, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। At constant volume 4 mole of an ideal gas when heated from 300 to 500 Kelvin changes its internal energy by 5000 joule, the molar heat capacity at constant volume। सबसे पहली बात तो यह है कि इस प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, वर्क डन 0 होगा, फर्स्ट लॉ लगाएं तो डेल्टा U इज इक्वल टू Q, दिस Q इज QV, QV इज इक्वल टू NCV डेल्टा T, सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज 5000 जूल, और गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं 4 हैं, सीवी की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, डेल्टा टी इज इक्वल टू 200, सो फ्रॉम हियर इफ वी कैलकुलेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सीवी, इसको हम लिख सकते हैं 5000 डिवाइडेड बाय 800, इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस वैल्यू विल बी 50 डिवाइडेड बाय 8, सो 6 टाइम्स जाएगा तो 48 होगा, then again 2 times and then 5 times, 6.25 should be the answer for this is a very simple question based on first law of thermodynamics। Next problem, the entropy S0 of the following substances are given in joule per Kelvin per mole, the entropy change delta S0 for the reaction is। तो बिना रिएक्शन को सॉल्व करे पहले हम साइन कंसीडर करते हैं, राइट हैंड साइड में गैस का एक मॉलिक्यूल है, ये तो लिक्विड स्टेट में, और लेफ्ट हैंड साइड में गैस के 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो डेल्टा एनजी की वैल्यू नेगेटिव है, तो सॉल्व करने से पहले ही हमें पता है कि एंट्रोपी चेंज नेगेटिव आएगा और सारे ऑप्शंस में नेगेटिव वैल्यू दे रखी है, सो वी नो दैट एंट्रोपी इज अ स्टेट वेरिएबल, वी कैन राइट दैट डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन डेल्टा एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट माइनस समेशन एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट विद देयर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो इस फॉर्मूले पे बेस्ड है, अगर हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं, डेल्टा एस नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू एंट्रोपी चेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, तो दैट इज एंट्रोपी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ H2 इन लिक्विड स्टेट माइनस एंट्रोपी ऑफ CH4 गैस माइनस 2 टाइम्स एंट्रोपी स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ ऑक्सीजन गैस, केवल वैल्यू पुट करके कैलकुलेशन। कई बच्चे इसमें भी बहुत जल्दी जल्दी में कैलकुलेशन करना चाहते हैं, दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच। अगर क्वेश्चन सिंपल है, केवल कैलकुलेशन करने से नंबर आ रहे हैं, तो आप जल्दीबाजी करके क्यों अपने नेगेटिव मार्क्स लेके आने की कोशिश कर रहे हो, गिव टाइम टू द कैलकुलेशन। तो हम रखते हैं इसमें वैल्यू, CO2 के लिए जो वैल्यू है दैट इज 213.6, और यहीं मैं रख देता हूं CH4 के लिए वैल्यू है -186.2, 2 को कॉमन ले सकते हैं हम,
Entropy of H2O is 69.9 and entropy of O2 gas is 205. अब इसका सिंप्लीफिकेशन करना है। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, एंट्रोपी चेंज फॉर द केमिकल रिएक्शन इज इक्वल टू, यहां से इसको माइनस करता हूं तो 4 आएगा, 13 माइनस 6 विल बी 7, यहाँ ये हो गया 0, 0 माइनस 8 विल बी 2, सो प्लस 27.4। इसको अगर हम देखें तो ये हो गया 2 और यहाँ वैल्यू नेगेटिव आएगी। अगर मैं 205 में से 69.9 माइनस करता हूं, दिस वैल्यू विल बी 14 माइनस 9 विल बी 5 and this will be 9, 9 minus 6 will be 3 and this is 135.1, so this multiplied by 2, इसको मैं लिख देता हूं 135.1 और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दिस इज 27.4 एंड दिस इज इक्वल टू 270.2। तो 270.2 में से अगर हम 27.4 माइनस करते हैं तो यहाँ 8 आएगा, 9 माइनस 7 is 2 and 6 minus 2 will be 4, so 242.8 ऐसा कोई ऑप्शन है? Yes, 242.8, fourth will be the answer for this. Moving to the next problem, the molar heat capacity Cp for CD2O, ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड में हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम है। फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मूला HCHO या हम कह सकते हैं CH2O, इसकी जगह CD2O है, is 10 calories at 1000 Kelvin। द यूनिट इसमें सही नहीं लिखी है, मोलर हीट कैपेसिटी में कैलोरी पर केल्विन पर मोल होना चाहिए था, बट दैट इज अंडरस्टूड। द चेंज इन एंट्रोपी एसोसिएटेड with cooling of 32 gram of CD2O vapor from 1000 Kelvin to 100 Kelvin at constant pressure will be, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास दे रखा है। तो सबसे पहले हम ये जो फॉर्मेल्डिहाइड है CD2O, इसका मोलर मास कैलकुलेट करते हैं। कार्बन का एटॉमिक मास 12, ड्यूटेरियम का एटॉमिक मास 2, so 2 into 2 will be 4 and this is 16, so molar mass will be 32, number of moles of CD2O is equal to 1 mole इसका दे रखा है। now they are asking that the entropy change, basic formula क्या है entropy change का, ds is equal to del q reversible upon temperature। del q रिवर्सिबल, यहाँ हम नंबर ऑफ मोल्स और हीट कैपेसिटी Cp की वैल्यू दे रखी है, इसके टर्म्स में लिख सकते हैं NCP dt अपॉन T। सो कांस्टेंट प्रेशर पे हमें ये सब कुछ कैलकुलेट करना है, तो ds is dqp अपॉन T। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वी कैन राइट दैट एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू NCP ln T2 अपॉन T1। n की वैल्यू 1 है, Cp की वैल्यू दे हैव गिवन दैट इज इक्वल टू 10 और कैलोरीज में वैल्यू दे रखी है ln T2 अपॉन T1। सो T2 इज 100 एंड T1 इज 1000, सो दिस इज 1 by 10। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो एंट्रोपी चेंज शुड बी नेगेटिव, ये वैल्यू नेगेटिव आएगी। 10 ln 10 की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, दैट इज ln 10 इज इक्वल टू, नहीं दे रखी है तो वी कैन से दैट ln को log में कन्वर्ट करेंगे तो ये 2.303, log 10 इज 1, so I can write 10 into 2.303, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, this will be 23.03 with minus sign। यूनिट लिखनी चाहिए कैलोरी पर केल्विन पर मोल, इस तरह से लिखनी चाहिए, कैलोरी पर केल्विन बिकॉज 1 मोल के लिए है, राइट। सो वी शुड राइट हियर दैट द एंट्रोपी चेंजेस कैलोरी पर केल्विन, ये इसमें आना चाहिए। 1 मोल के लिए तो पर मोल भी आप कह सकते हो, बट दिस शुड बी द आंसर। टेम्परेचर चेंज डिग्री सेल्सियस में या टेम्परेचर चेंज कैलोरी में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इस हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। 1 शुड बी द आंसर फॉर दिस। कूलिंग हो रही है तो एंट्रोपी शुड डिक्रीज। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, डेल्टा G naught formation at 500 Kelvin for a substance S in liquid state and gaseous state are 100.7 kilocalorie per mole and 100.3 kilocalorie per mole respectively. Vapor pressure of liquid S at 500 Kelvin is approximately equals to, okay, तो यहाँ पे
इस लिक्विड एस का वेपोराइजेशन हो रहा है लिक्विड टू वेपर स्टेट, वी कैन राइट लाइक दिस। इस रिएक्शन के लिए मैं लिख सकता हूं व्हाट इज डेल्टा जी नॉट रिएक्शन। डेल्टा जी नॉट रिएक्शन इज डेल्टा जी नॉट फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज S in gaseous state minus delta G naught formation of reactant S in liquid state। डेल्टा G naught formation की वैल्यू दे रखी है दोनों के लिए। तो लिक्विड स्टेट में वैल्यू 100.7 है और गैसियस स्टेट में 103 है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 103 माइनस 100.7, दिस इज इक्वल टू 2.3। ये जो यूनिट है इसका ध्यान रखना है हमें, किलो कैलोरी पर मोल में इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट आ गया। वंस वी नो दैट डेल्टा जी नॉट ऑफ दिस रिएक्शन is 2.3, we can apply the formula delta G naught of the reaction is equal to minus RT ln equilibrium constant। Be careful, we are writing ln और log, इसमें हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे R की वैल्यू 2 दे रखी है, ठीक है, और हमसे वेपर प्रेशर पूछा जा रहा है, तो वी कैन यूज हियर डेल्टा जी नॉट की वैल्यू 2.3 है। अगर ln को log में कन्वर्ट करना 2.303, बट ये डेटा देख के ऐसा इंस्टिंक्ट आ रहा है कि हमें यहाँ पे ln को log में जब कन्वर्ट करेंगे तो 2.303 की जगह केवल 2.3 लिखेंगे। टेम्परेचर इज 500, सो 500, ये थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना है, ये किलो कैलोरी में है, कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। एंड यहाँ पे वी कैन राइट दैट दिस वैल्यू इज 2.3 log equilibrium constant for this reaction is equal to vapor pressure of the liquid। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, ये 1000 कैंसिल आउट, 2.3 will cancel out, so we can say that log vapor pressure is -1, and on simplification we can write that vapor pressure is equal to 10 to the power -1, which is equal to 0.1 atm आना चाहिए इसके लिए। तो from here we'll say that 1 should be the answer for this, 1 आंसर इसका होगा। मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस एंट्रोपी चेंज इज नेगेटिव। हमें पता है कि ग्रेफाइट और डायमंड में जो ग्रेफाइट है इसकी एंट्रोपी ज्यादा है, क्योंकि ग्रेफाइट में एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव कर सकती है। डायमंड में जो है वो 3 डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड है जिसमें हर कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम से कनेक्टेड है। इट इज डिफिकल्ट टू मूव इट, ठीक है, फ्रीडम ज्यादा ग्रेफाइट के अंदर है। तो यहां अगर हम एंट्रोपी चेंज की बात करें तो एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव। इसी तरह से क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गोल्ड और मरकरी में किसकी एंट्रोपी ज्यादा है। मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, गोल्ड इज सॉलिड, तो विल से दैट द एंट्रोपी ऑफ लिक्विड विल बी मोर देन दैट ऑफ सॉलिड। तो मरकरी की एंट्रोपी जो है वो गोल्ड से ज्यादा है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है, 2-3 गैसेस दे रखी होती है, जैसे वन गैस इज NH3, दूसरी गैस जो है वो CH4 दे रखी है, और आपसे पूछा जाता है कि किसकी एंट्रोपी ज्यादा है। सो दीज डेटास आर गिवन इन NCERT, और अगर 2 गैसेस हैं, अगर दोनों सब्सटेंस गैसियस स्टेट में है, तो जिस सब्सटेंस का मोलर मास ज्यादा होगा उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। एंट्रोपी एक्सटेंसिव वेरिएबल है। कई बच्चे सोचते हैं कि CH4 में तो 5 एटम है तो वहां फ्रीडम ज्यादा होनी चाहिए, NH3 में तो 4 ही एटम है। दैट अप्रोच इज रॉन्ग, द डेटा इज गिवन इन NCERT। पीछे आप डेटा देखोगे तो जो मैं कह रहा हूं उससे मैच करेगा, तो इसको आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो कि स्टेट ऑफ मैटर अगर सेम है तो जिसका मोलर मास ज्यादा है उसका एंट्रोपी ज्यादा होगा, ठीक है। अभी सेकेंड ऑप्शन पे चलते हैं। नाइट्रोजन गैस को ही कंपेयर किया जा रहा है, प्रेशर और वॉल्यूम के बारे में कुछ नहीं दे रखा है, मतलब वो सेम होगा तभी नहीं दे रखा है। टेम्परेचर यहाँ ज्यादा है यहाँ कम है। सपोज मैं ये लिखता हूं इस प्रोसेस के लिए कि व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज फॉर दिस प्रोसेस, अज्यूमिंग दैट दिस इज एन आइडियल गैस, तभी मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं। तो मैं आइडियल गैस अज्यूम करके ये फॉर्मूला लगा रहा हूं। एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू NCV ln T2 upon T1 प्लस NR ln V2 upon V1, ठीक है, ये इस तरह से लिख सकते हैं। या एंट्रोपी चेंज का फॉर्मूला हम ये लगा सकते हैं NCP ln T2 upon T1 प्लस NR ln P1 upon P2। तो अगर आप कोई भी फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे वॉल्यूम प्रेशर के बारे में नहीं दे रखा, मतलब दैट विल बी सेम, दैट्स व्हाई दे हैव नॉट मेंशन टेम्परेचर।
तो अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो एंट्रोपी चेंज क्या होगी, पॉजिटिव होगी। सो फ्रॉम हियर आल्सो विल से दैट द एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव। इसमें आप देखो यहाँ गैस का एक पार्टिकल है, यहाँ गैस के दो पार्टिकल है, डेल्टा एनजी की वैल्यू पॉजिटिव है, दैट्स व्हाई एंट्रोपी चेंज विल बी पॉजिटिव। लास्ट ऑप्शन अगर हम देखें तो यहाँ पे प्रेशर बढ़ रहा है, मतलब गैस का कंप्रेशन हो रहा है। तो इन्हीं फॉर्मूले को अगर हम लगाते हैं और एंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करते हैं, टेम्परेचर के बारे में मेंशन नहीं, मतलब टेम्परेचर विल बी सेम, तो एंट्रोपी चेंज विल बी nr ln P1 अपॉन P2। प्रेशर इनिशियली जो है वो कम है और बाद में ज्यादा है, कंप्रेशन हो रहा है, तो एंट्रोपी चेंज विल बी नेगेटिव। तो हमारा जो आंसर होना चाहिए, फोर्थ आंसर होना चाहिए, इस केस के अंदर एंट्रोपी का चेंज जो है वो नेगेटिव है। अगर हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब जो वॉल्यूम है वो कम जगह में गैस मूव करेगी तो उसकी एंट्रोपी डिक्रीज करेगी। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट, at 320 Kelvin, a gas A2 is 20% dissociated to A gas. The standard free energy change at 320 Kelvin and 1 atm is in joule per mole is approximately. So this is a question based on relation between equilibrium constant and delta G naught of the reaction. अगर मैं ये पहले केमिकल रिएक्शन लिखता हूं, A2 will form 2 times of A in gaseous state। अगर मुझे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है तो मैं इक्विलिब्रियम पे मैं नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में लिखता हूं। यहां अगर इनिशियल मोल्स 1 है, इफ वी हैव टू राइट द रिलेशन बिटवीन P total Kp and alpha, it is independent of initial number of moles। तो इक्विलिब्रियम पे मैं नंबर ऑफ मोल्स लिखना चाहता हूं, मैं 1 से शुरू कर सकता हूं, दिस इज 1 माइनस अल्फा एंड दिस इज इक्वल टू 2 अल्फा। इक्विलिब्रियम पे ये मोल्स हो गए। इस रिएक्शन के लिए Kp की वैल्यू क्या होगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ A का होल स्क्वायर अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A2। अगर मैं A का पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट करता हूं, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, टोटल नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मोल फ्रैक्शन इनटू P टोटल। P टोटल की वैल्यू 1 दे रखी है ना, at 1 atm, so P total is 1, so we can put here अल्फा की वैल्यू 20% डिसोसिएटेड है, अल्फा की वैल्यू 0.2 है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ हो जाएगा 0.4। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज 1 प्लस अल्फा, दैट इज 1.2 इनटू पी टोटल। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, दिस वैल्यू इज 1/3। 1/3 एटीएम जो है, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। इसी तरह से वी कैन राइट व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ A2। A2 का पार्शियल प्रेशर क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A2 इज 1 minus alpha, right? So here I should write number of moles of A2 upon total number of moles into P total। A2 के जो number of moles है 1 minus alpha है, 1 minus 0.2 will be 0.8 और total number of moles जो है वो 1.2 है into 1, so this value is equal to 2/3 atm। ये हो गया पार्शियल प्रेशर दोनों का। So we can write what is the value of Kp। Kp is partial pressure of A का whole square means 1/3 का whole square अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A2 दैट इज 2/3। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ रही है 1/2 into 3। दिस इज Kp। नाउ वी हैव टू राइट डेल्टा G नॉट ऑफ द रिएक्शन। थोड़ा सा यूनिट का ध्यान रखना है, यहाँ ln की वैल्यू दे रखी है तो बी केयरफुल, log नहीं लिखना है, 2.303 का फैक्टर नहीं आएगा, माइनस RT ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। सो इफ यू पुट द वैल्यू ln 1/2 एंड 1/3 इस तरह से इसको सिंप्लीफाई कर लो, R की वैल्यू 8.314 है, टेम्परेचर एट विच दिस इज टेकिंग प्लेस इज 320, सो वी शुड राइट हियर दिस वैल्यू इज इक्वल टू 8.314 और टेम्परेचर की वैल्यू 320 है। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ln 2 प्लस ln 3, तो आप ये मल्टीप्लाई कर लो। यहाँ पे ln 2 की वैल्यू दे रखी है 0.693, इसमें हम ऐड कर देंगे 0.693 प्लस 1.098। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन है, आप मतलब इतनी जल्दी भाग नहीं सकते यहाँ से, यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन। अगर मैं 83.14 को 32 से मल्टीप्लाई करता हूँ, आई कैन राइट दैट दिस इज 28 6 16, ये होना चाहिए 42 9 एंड 24, so this is 8 4 10 7, I think 6, this will come 6 and this will be 6 and this will be 2, तो ये वैल्यू आ रही है 2060.48।
और जब हम ये 1 से कुछ बड़ी वैल्यू 1.6, तो इससे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इस वैल्यू को, डेफिनेटली ये 26.60 है, 2660.48 मल्टीप्लाइड बाई 1। आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 11, 18 एंड 1 19 एंड ये 1.791 होगा, राइट। तो ये आपको देखना है, इसका मल्टीप्लिकेशन करके देखना है कि ये वैल्यू किसके नजदीक होनी चाहिए, राइट। सो यू हैव टू डू द मल्टीप्लिकेशन। आप मल्टीप्लिकेशन करके देखो। ये 1.8 से अगर मैं मल्टीप्लाई करके सॉल्व करता हूं इसको, तो मेरे हिसाब से जो आंसर आना चाहिए, द आंसर शुड बी 2 आंसर आना चाहिए इसका। थोड़ा सा कैलकुलेशन जो है आप लास्ट स्टेज पे आके इसको छोड़ना नहीं है, यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन। सो बाय डूइंग कैलकुलेशन वी आर गेटिंग दैट सेकंड शुड बी द आंसर, ठीक है, सेकंड आंसर होना चाहिए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Two blocks of the same metal having same mass and at temperature T1 and T2 respectively are brought in contact with each other and allowed to attain the thermal equilibrium at constant pressure. The change in entropy for this process is। तो अब जैसे इसमें क्वेश्चन को पूरी तरह से मेंशन नहीं किया है कि ये ब्लॉक आपस में कनेक्टेड हैं एंड दे आर कंटेन्ड इन इंसुलेटेड सो दैट द हीट एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एट हायर टेम्परेचर और लोअर टेम्परेचर इज नॉट डिसिपेटेड टू द सराउंडिंग। बट क्वेश्चन पढ़ के ये अंडरस्टूड है कि अगर ऐसा कुछ होता तो दे विल मेंशन। तो क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ रहा है कि देयर आर टू ब्लॉक ऑफ द सेम मेटल हैविंग सेम मास और इनको आपस में कनेक्ट किया गया है। तो इसमें से एक जो है हायर टेम्परेचर पे होगा, दूसरा लोअर टेम्परेचर पे होगा। दे हैव नॉट मेंशन, यू कैन assume anything like I can assume that T1 is greater than T2। तो ये हॉट बॉडी हो गई और ये कोल्ड हो गई एंड हीट एनर्जी विल फ्लो from hot to cold till the temperature of both the body will be same। तो पूरे प्रोसेस में इस पूरे सिस्टम के लिए the net heat loss and net heat gain will be same। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि इसने कितना हीट लॉस किया है, क्योंकि पूरे सिस्टम ने कोई हीट लॉस नहीं किया है, इन दोनों को मिला के मैं सिस्टम मान रहा हूं। तो इसने जो हीट एनर्जी लॉस करी है उसको मैं लिख सकता हूं m इसका मास है, राइट। इसका मास भी m है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है, इसकी भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी s है। तो m into s into final temperature minus initial temperature, this is the heat loss, plus m into s final temperature minus initial temperature, this is the heat gain। इनका सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ms कॉमन है, so from here I can calculate final temperature is T1 plus T2 divided by 2। ये final temperature की वैल्यू होगी। नाउ ये जो मेटालिक प्लेट है इसका धीरे धीरे टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, इसका कूलिंग हो रहा है, और इसका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर रहा है, इसका हीटिंग हो रहा है। तो इसके लिए लिखेंगे कि व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज। एंट्रोपी चेंज इज dq रिवर्सिबल अपॉन t, dq इज ms dt अपॉन t। इसके लिए भी ऐसे ही लिखेंगे, एंट्रोपी चेंज इज इक्वल टू m into s into dt अपॉन t। दोनों को अगर इंटीग्रेट करते हैं, यहाँ इनिशियल टेम्परेचर जो है वो t है, फाइनल टेम्परेचर t1 है। यहाँ इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर T है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर T1, यहाँ इनिशियल टेम्परेचर T2 और फाइनल टेम्परेचर T है। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये जो डेल्टा S1 की वैल्यू आएगी दैट इज ms ln T अपॉन T1, एंड यहाँ से जो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू आएगी डेल्टा S2 दैट इज ms ln T अपॉन T2। नेट चेंज इन एंट्रोपी इज द सम ऑफ डेल्टा S1 प्लस डेल्टा S2। तो यहां से हम कह सकते हैं कि जो टोटल एंट्रोपी चेंज है दैट इज इक्वल टू ms ln T का होल स्क्वायर अपॉन T1 T2। अगर हम T की वैल्यू पुट कर दें so we can write that this value is equal to ms ln T1 plus T2 whole square divided by 4 times of T1 T2। ये वैल्यू होनी चाहिए। m into s is heat capacity, right। तो यहाँ पे जो ऑप्शंस दे रखे हैं, या तो कहीं Cp दे रखा है 2 times of Cp, बट आंसर तो हमारा इसको देख के ही आ जाएगा। थर्ड विल बी द आंसर, बट इट इज नॉट मोलर हीट कैपेसिटी, दिस Cp इज हीट कैपेसिटी। m into s की जगह Cp लिखा है, Cp ln ये जो भी वैल्यू है इसको रख देंगे। सो फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग दैट थर्ड विल बी द आंसर फॉर दिस।
Moving to the next problem. For the chemical reaction X will form by the standard reaction gives energy depends on temperature. इस तरह से ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट है। ये पूछा जा रहा है कि इसमें मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की अगर इस कंडीशन में अगर रिएक्शन यहाँ पे जो रिएक्शन दे रखी है, अगर मैं ये फाइंड आउट करता हूं कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किस टेम्परेचर पे जीरो होगी, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू जीरो का मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वन होगी, राइट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वन होगी तो इसमें दोनों के नंबर ऑफ मोल्स या अमाउंट जो है दैट विल बी इक्वल। तो बेस्ड ऑन दैट वी कैन सॉल्व। इसमें ये पूछा जा रहा है कि विच इज द मेजर कंपोनेंट, टेम्परेचर दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू वन रख के ये फाइंड आउट करते हैं कि डेल्टा जी नॉट रिएक्शन की वैल्यू जीरो किस टेम्परेचर पे होगी। तो यहां अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं वी कैन राइट दैट 120 इज इक्वल टू 3/8 टाइम्स ऑफ टेम्परेचर। सो वी कैन सिंप्लीफाई हियर, ये होना चाहिए 40। सो टेम्परेचर जो है अगर 320 केल्विन है तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 1 होगी। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो ये डेल्टा जी नेगेटिव है, राइट। सो वी शुड राइट दैट इफ टेम्परेचर is greater than 320 then delta G naught of the reaction will be negative. It means that equilibrium constant is greater than 1. Equilibrium constant की जो वैल्यू होगी वो 1 से बड़ी होगी और इस केस में हम कह सकते हैं कि y should be greater than x. अगर टेम्परेचर 320 केल्विन से कम होता है, if the temperature is less than, then delta G naught of the reaction should be positive, equilibrium constant should be less than 1 and in this case x will be greater than y. तो आपको ऑप्शन देखना है, जैसे पहला ऑप्शन है टेम्परेचर दे रखा है इन्होंने 315 और बोला है मेजर प्रोडक्ट जो है वो x होगा। हमें पता है कि अगर टेम्परेचर 320 से कम है, right, when the temperature is less than 320 then x will be the major product. I think that ये ऑप्शन मैच कर रहा है, पहला ही ऑप्शन मैच कर गया है क्योंकि ये वाले ऑप्शन गलत हो गए, ठीक है। x के लिए ये, y के लिए ये गलत हो गया। 280 पे x जो है वो डोमिनेट करेगा, यहाँ पे टेम्परेचर 320 से कम है तो ये भी गलत हो गया। सो फ्रॉम देयर वी आर गेटिंग दैट द फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। Moving to the next problem for the equilibrium, ये इक्विलिब्रियम दे रखा है, डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट करनी है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए Kw की वैल्यू हम लिखेंगे 298 केल्विन पे, दैट वैल्यू इज इक्वल टू 10 टू द पावर -14। डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -2.303 RT लॉग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो 10 टू द पावर -14। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है लेकिन कैलकुलेशन की वजह से कई बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। एनसीईआरटी को अगर आप देखो एनसीईआरटी बुक में, क्योंकि हम ये कैलकुलेशन बार बार इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थर्मोडायनेमिक्स में यूज करते हैं, तो 298 केल्विन पे जूल में ये वैल्यू दे रखी है एनसीईआरटी में कि अगर हम 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 को मल्टीप्लाई करें, so this value is 5709। so 5709 और यहां इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो this is -14। so now you can write that this value is equal to 5709 into 14 जूल। आपको अगर किलो जूल में कन्वर्ट करना है तो this is equal to 5.709 into 14 किलो जूल, राइट। अप्रोक्सीमेट आपको आंसर लिखना है, राइट। इफ यू वांट टू राइट द अप्रोक्सीमेट आंसर 14 इंटू 6, इसको अगर मैं अप्रोक्सीमेट लेता हूं 6 तो 14 इंटू 6 विल बी 84। तो ये 80 के आसपास होनी चाहिए वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए एंड दैट शुड बी नियर अबाउट 80। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, पूरी कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं है। जिन बच्चों को ये डेटा याद नहीं है, इस क्वेश्चन ने उनका बहुत टाइम कंज्यूम किया होगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि कुछ कैलकुलेशंस जो एनसीईआरटी में दे रखी हैं वो बहुत यूजफुल है, कुछ फैक्टर्स दे रखे हैं वो आपको रिवाइज करने चाहिए, ठीक है। तो यूजिंग दिस वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम वेरी इजीली, अदरवाइज दिस इज अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन।
Moving to the next problem. A standard reaction gives energy for a chemical reaction at absolute temperature T is given by delta G naught reaction is equal to A minus Bt, where A and B are non-zero constant. Which of the following is true about the reaction? क्वेश्चन बड़ा सिंपल है. डेल्टा G naught reaction is equal to डेल्टा H naught reaction माइनस T डेल्टा S naught reaction. इसको कंपेयर करना है. तो रिएक्शन एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक है, वो डेल्टा एच रिएक्शन बताएगा, मतलब ए की वैल्यू बताएगी. अगर ए की वैल्यू पॉजिटिव है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी, अगर ए की वैल्यू नेगेटिव है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी. ठीक है, तो ये हमें यहां से फाइंड आउट करना है. कुछ बच्चे जो है इसको डेल्टा जी समझ रहे हैं. डेल्टा जी के बारे में पूछा नहीं जा रहा है. एंडो और एक्सो वो होता है एंड इर्गोइक और एक्स इर्गोइक. इफ दे वांट टू आस्क द साइन ऑफ डेल्टा जी नॉट देन एंड इर्गोइक एंड एक्स इर्गोइक. इट इज नॉट. यहाँ तो सिंपल पूछा जा रहा है एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक. सो फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट. ए के सिंबल से पता चलेगा. एक्सोथर्मिक ये गलत दे रखा है. ठीक है, ये बी से तो हमें एक्सो एंडो का नहीं पता चलेगा. इफ ए इज नेगेटिव देन इट इज एंडोथर्मिक, ये भी रॉन्ग है. ए इज पॉजिटिव देन इट इज एंडोथर्मिक. वेरी सिंपल क्वेश्चन. आंसर विल बी 4 होगा आंसर इसका. नेक्स्ट प्रॉब्लम. The reaction MgO in solid state plus carbon solid state will form magnesium solid plus carbon monoxide gas, for which delta H naught of the reaction is 491.1 kilojoule per mole and delta S naught reaction is 198. So they are asking that the reaction is not feasible at 298. The temperature above which the reaction will be feasible. कब ये reaction feasible होगी? तो again ये question जो है relation between delta G नॉट डेल्टा H नॉट एंड डेल्टा S नॉट पे है. डेल्टा G नॉट इज डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट. यहाँ पे लिखा है द टेम्परेचर अबव विच रिएक्शन विल बी फिजिबल. रिएक्शन फिजिबल होगी मतलब डेल्टा G नॉट की वैल्यू नेगेटिव होगी. यहाँ पे देखिए डेल्टा H नॉट पॉजिटिव, एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव. तो जब मैं इसको इधर ले जाऊंगा आई कैन राइट दैट T डेल्टा S नॉट. अब क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन है तो ये साइंस का ध्यान रखना है जब भी हमें इस तरह से लिखना है. राइट, यहाँ पे डेल्टा एस नॉट की वैल्यू पॉजिटिव है. अगर नेगेटिव होती तो ये साइन बदल जाता. पॉजिटिव है तो इसलिए मैं लिख सकता हूँ कि टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच नॉट ऑन डेल्टा एस नॉट. अब जो वैल्यू दे रखी है उसको पुट कर दो आप. डेल्टा एच नॉट की वैल्यू है 491.1 किलो जूल में. इसको जूल में कन्वर्ट कर दो, 1000 से मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि एंट्रोपी चेंज जो है वो जूल पर केल्विन में है. दिस इज 198 और हमें ये सॉल्व करना है. वी हैव टू सॉल्व दिस. तो थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको ध्यान से करनी पड़ेगी. राइट, सो व्हाट यू हैव टू डू, बस थोड़ा सा ये एफर्ट लगाना है. कई बच्चे इसमें भी गलतियां कर देते हैं, लास्ट में आके अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं गलत सलत. 49110 ये वैल्यू है. इसको हमें 198 से डिवाइड करना है. सो इफ वी राइट हियर 2 टाइम्स, ये कितना होगा 16 18 प्लस 119 396. इसको और सिंप्लीफाई करते हैं. हियर इट विल बी 5 और यहाँ पे जो है वो अगर ये 5 है 11 में से ये 10 बचा, 10 में से 9 गया, देन इट विल बी 1. यही आना चाहिए. और यहाँ पे this is 18 minus 9, sorry, if we simplify 11 minus 6 will be 5. ठीक है, यहाँ 8 बच गया. 18 minus 9 will be 9, so 95 आना चाहिए ये. so 950. अब अगर मैं यहाँ ये इसको 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ, if I multiply here by 4, right, so now I am getting this 32 and this will be 36 plus 3 is 39 and this will be 7. तो ये जो गिवन ऑप्शंस हैं, अब ये पूरी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. फ्रॉम हियर ओनली विल नो दैट सेकंड विल बी द आंसर फॉर दैट. राइट, तो कैलकुलेशन के वक्त आपको थोड़ा पेशेंस रखना है. कई बार आपको स्मार्ट वर्क भी करना है. A process has delta H is equal to 200 joule per mole and delta S is 40 joule per Kelvin per mole. Out of the values given below, choose the minimum temperature above which the process will be spontaneous. Minimum temperature.
अगेन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड प्रॉब्लम है। डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू, नॉट नहीं लिखा तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। फॉर स्पॉन्टेनिटी डेल्टा जी शुड बी लेस देन जीरो, सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट डेल्टा एच इज लेस देन टी डेल्टा एस। साइन जरूर देखो आप, डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है तो वी कैन राइट दैट टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस। आप अगर वैल्यू पुट करते हो, डेल्टा एच की वैल्यू है 200 और ये वैल्यू है 40, सो फ्रॉम देयर वी आर सेइंग दैट द मिनिमम टेंपरेचर अबव व्हिच द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस इज 5 केल्विन। यहां से जो वैल्यू आएगी 5 केल्विन आएगी। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो आपने देखा तीन क्वेश्चन सेम कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है कि किस कंडीशन में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी बेस्ड ऑन रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट, डेल्टा एच नॉट एंड डेल्टा एस नॉट, और डेल्टा जी, डेल्टा एच एंड डेल्टा एस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज the entropy change associated with the conversion of 1 kg of ice at 273 Kelvin to water vapor at 383 Kelvin. The specific heat of water liquid and water vapor are 4.2 kilojoule per Kelvin per kg and 2 kilojoule per Kelvin per kg. Heat of liquid fusion and vaporization of water are 344 kilojoule per kg एंड 2491 किलोजूल पर केजी रिस्पेक्टिवली। ये वैल्यूज दे रखी है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो ऐसे क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है वो 2-3 क्वेश्चन का टाइम कंज्यूम कर लेगा। कॉन्सेप्ट तो सिंपल है बट कैलकुलेशन इज वेरी डिफिकल्ट। टू समटाइम्स व्हेन यू नो द क्वेश्चन आल्सो बट you are feeling that you have to give a lot of time to solve the question, in place of that try to solve some simple questions, right? Ultimately तो मार्क्स से ही मतलब है। ऐसा नहीं है कि किसी मुश्किल सवाल को सॉल्व करके आपको बहुत ज्यादा नंबर मिलने वाले हैं। सो बी केयरफुल अबाउट द टाइम मैनेजमेंट। तो ये क्वेश्चन ऐसा था कि अगर आप किसी एक क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो, आपके पास टाइम की कमी है, तो आप इस क्वेश्चन को छोड़ सकते थे। चलिए अब हम क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे आते हैं। यहाँ पे सारा डेटा पर केजी में दे रखा है और 1 केजी ऑफ आइस दे रखी है, ठीक है। तो पहले हमें देखना है कि जो हमारा वाटर है वो किस कंडीशन में है, राइट। 1 केजी ऑफ आइस, आइस एट 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस, ये सॉलिड स्टेट में H2O है। और फाइनली हमें इसको वाटर वेपर में कन्वर्ट करना है। सो H2O and temperature is 383 Kelvin and the state of matter of the substance is gas। हमें पता है कि इंट्रोपी जो है वो स्टेट वेरिएबल है, तो अगर मुझे यहां से ये इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है, इसका इंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। मैं डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लगा सकता, इसलिए मुझे कोई एक ऐसा पाथ करना चाहिए जिसमें मैं फॉर्मूले अप्लाई कर पाऊं। तो मैं क्या कर रहा हूं कि इस आइस को 273 केल्विन पे जो आइस है इसको मैं मेल्ट कर रहा हूं। सो इट विल कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट। टेम्परेचर सेम ही रहेगा 273 केल्विन। सॉलिड से लिक्विड में आ गए। फ्यूजन के लिए वैल्यू दे रखी है, फ्यूजन एंड वेपोराइजेशन। तो यहाँ पे जो है फ्यूजन हो रहा है, मेल्टिंग हो रही है, तो ये वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि व्हाट इज द एंट्रोपी चेंज। डेल्टा जी 0 होगा, मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्टिंग है, तो डेल्टा एस इज डेल्टा एच अपॉन टेम्परेचर, क्योंकि डेल्टा जी 0 है, मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्टिंग हो रही है, तो डेल्टा एच फ्यूजन अपॉन फ्यूजन टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर हम यहाँ लिख सकते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू इन्होंने दे रखी है, द वैल्यू ऑफ फ्यूजन इज 344 किलोजूल में है, तो हमें ये सब कुछ किलोजूल में ही लिखना है, यूनिट का कोई चक्कर नहीं है। तो यहाँ लिख लेते हैं 344 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर, टेम्परेचर इज 273। अब ये कैलकुलेशन टफ है, यू हैव टू डू दिस कैलकुलेशन, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू आएगी किलोजूल पर केजी पर केल्विन, इसी में आएगी ये। देन ये जो H2O लिक्विड स्टेट में है 273 डिग्री सेल्सियस, 273 केल्विन मतलब 0 डिग्री सेल्सियस पे इसको हम हीट करेंगे। हीट करने पे ये जो H2O है वो 373 केल्विन तक हीट हो पाएगा 100 डिग्री सेल्सियस पे, लिक्विड स्टेट में ही रहेगा। देन व्हाट विल डू, विल फ्रीज, विल वेपोराइज दिस वाटर टू वाटर वेपर एट 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन। यहाँ पे ये गैसियस स्टेट में चला गया और फिर हम इस गैस का टेम्परेचर बढ़ा के 383 केल्विन तक ले जाएंगे। तो यहाँ देखिए दिस इज हीटिंग ऑफ लिक्विड वाटर,
तो धीरे धीरे हम हीट कर रहे होंगे तो इंट्रोपी चेंज का मैं फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ds is dq reversible upon t, that is ms dt upon t, right? ms dt upon t, तो इन्होंने सब मास के टर्म्स में ही दे रखा है, इसलिए मैं वो ms dt upon t लिख रहा हूँ और इंटीग्रेट करूंगा। तो यहाँ जो इंट्रोपी का चेंज आना चाहिए, that should be written as m into s ln t2 upon t1, that is 373 upon 273। इस लॉन को लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो हम लिख पाएंगे यहाँ पे 2.303, या क्योंकि बहुत कैलकुलेशन है तो 2.3 ही लिख लेते हैं। 2.3 इंटू m इज 1 kg, और जो यहाँ पे लिक्विड वाटर है उसकी हीट कैपेसिटी की वैल्यू दे रखी है, हीट कैपेसिटी इज 4.2, यहाँ लिख देता हूँ 4.2, और ये हो गया लॉग 373 अपॉन 273। सो यू कैन सी दैट ये कैलकुलेशन इतनी आसान नहीं है। यहाँ अगेन दिस इज वेपोराइजेशन, ये वैल्यू तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर के डेल्टा एच वेपोराइजेशन की वैल्यू है 344। हमें इंट्रोपी चेंज कैलकुलेट करना है। इंट्रोपी चेंज इज डेल्टा एच डिवाइडेड बाय टेम्परेचर। डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है 344 और किलोजूल में ही रखनी है, क्योंकि जो आंसर भी है वो भी किलोजूल में दे रखा है। टेम्परेचर जो है वो 373 है, राइट? सो 344 अपॉन 373, राइट? सो दिस इज द एंट्रोपी चेंज। इसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं, फॉर दिस वी कैन राइट हियर कि इसके लिए वैल्यू क्या होगी। ये मैंने 344 गलत लिखा है क्या? इट इज 2491। This value is 2491. I should write here 2491. This is the entropy change. ये जो है वेपर की हीटिंग हो रही है, तो मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकता हूँ ms ln t2 अपॉन t1, t फाइनल अपॉन t इनिशियल। ये वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे। m की वैल्यू 1 kg है। स्पेसिफिक हीट फॉर वेपर इज 2 किलोजूल पर केल्विन पर मोल। ये कई बच्चे जो है ln को log में कन्वर्ट करना भूल जाएंगे। log t फाइनल टेम्परेचर जो है वो 383 है और इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 373 है। सो दीज थिंग्स आर देयर, सो यू कैन सी दैट कि पहले ये सबको ऐड करके तब फाइनल आंसर आएगा। सो व्हेन वी पुट द वैल्यू, ये सारी कैलकुलेशन करेंगे, तो कैलकुलेशन करने के बाद ये वैल्यू जो है वो 9.26 आ रही है। तो जेईई मेंस में इतना सारा टाइम एक क्वेश्चन के लिए लगाना थोड़ा सा रिस्की है। अगर आपके पास टाइम बचा हुआ है तब तो समझ में आता है, अदरवाइज मतलब इसमें ऑनेस्ट यही होना चाहिए कि इस तरह की लेंथी कैलकुलेशन आपको सवाल आता है तब भी आपको इस तरह के सवाल को छोड़ देना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द प्रोसेस विथ नेगेटिव एंट्रोपी चेंज, इस तरह के बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला ऑप्शन है डिसोल्यूशन ऑफ आयोडीन इन वाटर। पहले तो ये क्यों डाला है समझ में नहीं आ रहा, आयोडीन वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो हम बाकी ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। ये पहला वाला ऑप्शन जो है, जैसे हमें पता है कि वाटर को हम वाटर में अगर हम सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट NaCl को डिसॉल्व करेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, या शुगर को डिसॉल्व करेंगे एंडोथर्मिक प्रोसेस है, राइट। लेकिन ये आयोडीन तो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता, तो पहले हम इस ऑप्शन को छोड़ ही देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन में जाते हैं। सिंथेसिस ऑफ अमोनिया फ्रॉम नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन, ये रिएक्शन लिख सकते हैं। नाइट्रोजन प्लस 3 टाइम्स ऑफ हाइड्रोजन विल फॉर्म 2 टाइम्स ऑफ अमोनिया। सारे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट गैसियस स्टेट में है। डेल्टा Ng की वैल्यू नेगेटिव है, तो एंट्रोपी चेंज की वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका आंसर जो होना चाहिए वो सेकंड होना चाहिए, बिकॉज दे आर सेइंग नेगेटिव एंट्रोपी चेंज। डिसोल्यूशन ऑफ कैल्शियम सल्फेट, ये रिएक्शन अगर लिखते हैं यहाँ जिस तरह से दे रखा है, CaSO4 इन सॉलिड स्टेट, H2O इन लिक्विड स्टेट, ये डिसोल्यूशन तो नहीं है, तो इन्होंने डिसोसिएशन होना चाहिए। ये भी एक गलती कर रखी है इसमें, बट ये अंडरस्टूड ही है, दैट इज अंडरस्टूड। इट शुड बी डिसोसिएशन, इट शुड नॉट बी डिसोल्यूशन। इट्स फाइन। आगे बढ़ते हैं, हम इसको लिख लेते हैं। कैल्शियम सल्फेट को अगर हम डिसोसिएट करें, कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस, फ्रॉम हियर विल से दैट डेल्टा S शुड बी पॉजिटिव, बिकॉज इस रिएक्शन में डेल्टा Ng की वैल्यू पॉजिटिव है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, ड्राई आइस मतलब CO2 इन सॉलिड स्टेट, और सब्लिमेशन मतलब CO2 इन गैसियस स्टेट, तो इस प्रोसेस में एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, ये भी गलत हो गया। इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज आयोडीन इज नॉट सॉल्युबल इन वाटर। तो कुल मिला के हमें आंसर तो मिल ही रहा है, सेकंड शुड बी द आंसर फॉर दिस।
Moving to the next problem, for the reaction A in liquid state will form 2 times of B in gaseous state. Delta U and delta S is given at 300 Kelvin. Hence, delta G in kilocalorie is delta G is equal to delta H minus T delta S. Delta H निकालने के लिए we should write the relation between delta H and delta U. Delta H is equal to delta U. P2 V2 minus P1 V1 तो प्रेशर वॉल्यूम का कुछ देने रखा है तो हम लिखेंगे कि गैस आइडियल गैस है एंड देन विल एबल टू राइट डेल्टा NgRT. थोड़ा हमें ध्यान ये देना है कि हमें किलो कैलोरी में निकालना है तो ये भी किलो कैलोरी में होना चाहिए और ये किलो कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना चाहिए. डेल्टा U की वैल्यू दे रखी है 2.1 किलो कैलोरी. डेल्टा Ng फॉर दिस रिएक्शन विल बी 2. R की वैल्यू कैलोरी में 2. टेम्परेचर एट विच इट इज टेकिंग प्लेस इज 300 डिवाइडेड बाय 1000. तो अगर हम 1200 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये 1.2 आएगा. 2.1 प्लस 1.2 would be 3.3. So this value will be 3.3 kilocalorie per mole. Delta H की वैल्यू पता चल गई है. Now if I have to calculate what is delta G, delta G is delta H माइनस टी डेल्टा एस. यूनिट का ध्यान रखना है. टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है. एंट्रोपी का चेंज 20 है बट यूनिट का ध्यान रखो यहाँ कैलोरी में हमें किलो कैलोरी में चाहिए तो वी शुड डिवाइड दिस बाय 1000. इसको हम 1000 से डिवाइड कर देते हैं. सो दिस इज 3.3. इसको आप सिंप्लीफाई करो तो ये -6 आ रही है वैल्यू. सो दिस वैल्यू इज -2.7. -2.7 किलो कैलोरी. तो जो आंसर मेंस वालों ने दे रखा था उसकी रेंज दे रखी थी 2.70 to -2.71 where there is no need to give the range. This is sufficient. ये आंसर होना चाहिए. Moving to the next problem. The true statement among the following, both delta S and S are function of temperature. अगर S टेम्परेचर का फंक्शन है तो डेल्टा S भी होगा. ये ट्रू स्टेटमेंट है. S is not a function. This is wrong. Delta S is a function of temperature. This is true, but this is wrong. Both S and delta S are not. This is wrong. S is a function of temperature, but delta S is not a function of temperature. बड़ा ही सिंपल सवाल था. एंट्रोपी टेम्परेचर पे डिपेंड करता है तो एंट्रोपी चेंज भी टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा. So 1 should be the answer for this. For the reaction A in gaseous state will form B in gaseous state. The value of equilibrium constant at 300 Kelvin and 1 atm is equal to 100. The value of delta G for the reaction at 300 and 1 atm. देखो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी दे रखी है और यहाँ पे अगेन वही इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है तो कंफ्यूज करने के लिए है. They have given equilibrium constant. Equilibrium constant is 100. ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन ही मतलब हमें डेल्टा G रिएक्शन का मतलब डेल्टा G नॉट रिएक्शन ही निकालना है and that is equal to -RT ln इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. यहां पे वैल्यू पुट कर देते हैं. माइनस R की वैल्यू दे हैव गिवन 8.31. टेम्परेचर एट विच वी हैव टू कैलकुलेट इज 300 एंड लॉन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 100 दे रखी है. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें दिस इज 8.31 into 300 और यहाँ पे ln 10 की वैल्यू 2.3 है. 2 into ln 10 आएगा तो that is equal to 4.6. This will be the value. We have to do this calculation. minus XR. Okay. XR के टर्म्स में लिखना है. ये R हो गया. I have to write this as 300 into 4.6 into R. So I have to find out the value of X. X की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 300 into 4.6 मल्टीप्लाई कर दो मतलब 30 into 46. तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं. दिस विल बी 18 and 12 and 1 13. राइट. सो 1380 इसका आंसर होना चाहिए. सो थोड़ा सा कंफ्यूजन इन्होंने क्रिएट किया कि डेल्टा G पूछा लेकिन कंडीशन ऐसी दे रखी है कि डेल्टा G और डेल्टा G नॉट विल बी सेम. इक्विलिब्रियम कंडीशन ही दे रखी है. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जो है हमारी ये जो भी प्रयास है आपको सफल बनाने के लिए जेईई मेंस में वो पसंद आ रहा होगा. अगर आप अभी भी हमारे वीडियो पर बने हुए हैं तो प्लीज लाइक करके जाइए, कमेंट करके जाइए और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए. फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रॉब्लम्स के साथ. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.